मेरे को आज एक ऑनेस्ट लर्निंग हुई. आई थिंक what you guys do cannot simply be covered in one podcast. ये तो मेरे को definitely पता लग गया. I don't think we've even scratched the surface in 1 or 2%. I would love to have you both on again, albeit in separate capacities, so I can individually dive into each of your fields and then learn comprehensively. Second, because आज हम लोगों ने इतने सारे क्या कहते हैं कच्चे चिट्टे खोल दिए हैं, मैं ज़रूर ये चाहता हूँ कि लोगों को जो लोग देख रहे हैं उनको ये ना लगे कि यार मेरे को तो पता था मेरे को एंजाइटी है, अभी और ऐसी एंजाइटी की बात कर रहे हैं. I would still like to, like a good Bollywood movie that is a masala banger with a good happy ending. I would still want perhaps both of you to tell me and my viewers exactly what you tell your patients to make them better. This could be the most general tips or strategies for mental health. This could be perhaps mottos for life, something else. I'm not asking either of you to be motivational speakers, पर क्योंकि आप ultimately लोगों को बेहतर बनाते ही हैं और आप दोनों का ये पेशा है, so if there can be something around those lines, I think that'll be great. I think the only thing that I tell, which comes across as something that can go well for everyone, is that just keep looking at the progress that you've made. Look at that and build from there. कपल्स आते हैं, उनको ये भी बोलते हैं कि ये क्या दिक्कतें हैं, क्यों लड़ रहे हो. एक चीज़ है, देयर वुड हैव बीन सम स्ट्रेंथ इन द रिलेशनशिप. कुछ तो स्ट्रेंथ होगी और वो निकालो और वहीं से बिल्ड करो. एंड टू ऑल माई अदर क्लाइंट्स ऑल्सो, वट एवर, रादर देन लुकिंग एट कहाँ अभी भी दिक्कत आ रही है, प्रोग्रेस कितना हुआ है, छोटा भी विन है, सेलिब्रेट दैट. And that helps because that gives you that hope. And when you've done this, then you can take another step also, is what which has been working, which works well for everyone. So for their ability to keep looking at what progress they've made helps them. I also think with the small wins, people are able to build their self-esteem. Yeah. Right. And I think that's very important, especially if there is an issue of like lack of self-love or compassion, but you're very, very like otherwise you're okay. It's like celebrating it. Because like me and so many of my workaholic friends, we don't sit down and celebrate our lives. It's like just काम करते रहो बस. I remember with one of my clients, सर आप भी देखते होंगे, a lot of people who come with severe depression of any form, उसमें कई बार ऐसा होता है, कई बार लोग ना are not able to take care of their personal hygiene and grooming. तो हमारी small wins क्या होती हैं कि वो सुबह उठे, बेड से उठ के बाथरूम तक गए, मुंह धोकर आए, आज ब्रश करा, पिछले हफ्ते से आज के सेशन तक हमने 7 दिन ब्रश करा, and that's our win. And that's what we celebrate. जो बाकी जनता माँ बाप नहीं सेलिब्रेट करेंगे, इतना भी नहीं करता. So that's what we celebrate, and that's what they are proud of, and that's what I am proud as a therapist. That good job. To now next step, अब मैं 2 बार नहाऊंगी हफ्ते में या नहाऊंगा. So from there, that's the journey that we start from, and that's the small win that I'm talking about. That ये नहीं देखना है कि जनता तो कहती है ये भी नहीं, ये तो basic है. No, but you are struggling. We are struggling. That's exactly what we are struggling with, and that's your win. So consistently doing that, despite the fact you did not feel like doing it, and you did it, that's good job, that's braveness. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. So that's what we celebrate, and that's work all the time. I think that's amazing. Yeah. क्योंकि लोग that's a very big thing जो मैं बोल रही है ना, because see ये लोग भूल जाते हैं कि बेसलाइन क्या है. लोगों को लगता है कि बेसलाइन सोसाइटी का जो रोज नहा रहा है, बट जो महीने में नहीं नहाया है, उसने 2 दिन अगर बेत किया, that's a huge jump. So telling people ki baseline kya hai. So what she's saying is immensely important. It's a huge thing. And in the beginning of the therapy session or beginning of treatment, I mean, this is an amazing thing to achieve. Yeah, like I did not realize कि because हम तो बहुत चीज़ों को assume करते हैं ना कि यार हाँ, of course, like who's gonna congratulate me for the fact that I went to work out? कोई नहीं करने वाला. But if a therapist can do that, it's almost like आपके दिमाग के मेम्ब्रेन के अंदर कोई और आपको आके बोल रहा है कि ये चीज़ सही है. Perhaps gives you evidence because we're as human beings we're very bad at tracking our own wins and achievements. Yeah. But ये तो मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ऐसे तो especially someone who's depressed, everyone's discarded them. Yeah. ये तो निकम्मा है, यूजलेस है, फलाना ढिमकाना है, पड़ा है कमरे में, अंधेरे में पड़ा है, खाना वाना नहीं खाया, 2 दिन से भूखा है. Yeah, I think it takes tons of empathy to be able to do that. Yeah. So that's celebrating small wins. I think it's very important, tell people that finally आप अगर डिप्रेस्ड हैं, एंशियस हैं, OCD है, फाइनली आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को ठीक करना. दुनिया में कोई और नहीं आने वाला. एंड सेकेंड चीज़, आपको जो भी सफरिंग करनी पड़ेगी वो भी आप ही को झेलनी पड़ेगी, इसलिए वो करिए जो आपके लिए काम कर रहा है. और मैं कई बार पेशेंट्स को बोलते हैं, पेशेंट्स हमें कई बार आके बोलते हैं ना कि साइकेट्रिस्ट तो फार्मा की लॉबी से काम करते हैं, आप लोगों को तो फार्मा कंपनीज पैसे देती हैं. तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गवर्नमेंट साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, वहाँ पे तो दवाई डॉक्टर लिख नहीं रहा है.
अगर आपको लग रहा है कि प्राइवेट डॉक्टर जो है वो अपने पैसे कमाना चाहता है, इट्स अ, देखिए हम लोग जिस सोसाइटी में बड़े हुए हैं ना, मेरे मेरे खुद के घर में ये बात बोली आती थी। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो एक हमारे जो लोकेलिटी थी वहाँ पे एक डॉक्टर थे, तो वो प्राइवेट डॉक्टर थे, तो बोला जाता था कि उनके पास पहली बार जाइए क्योंकि वो अच्छी दवाई देंगे, बट दूसरी बार जाइए तो वो एक ऐसी दवाई देंगे जिससे आप बीमार हो जाएंगे ताकि वो फीस बार बार ले पाएँ। ये बोला जाता था, मेरे घर में बोला जाता था। जब मैं बड़ा हुआ एमबीबीएस की, एमडी की, तो मुझे समझ आया कि ऐसी कोई दवाई नहीं होती जो बीमार कर दे। बट ये बात बहुत क्लियर है कि सोसाइटी सोचती क्या है, उसको हम बदल नहीं सकते। तो मेरा आंसर क्या है, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट डॉक्टर पैसा लेगा, आप गवर्नमेंट में जाइए। क्या आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ के लिए 2 घंटे लाइन में नहीं लग सकते? अगर आपको लगता है कि फार्मा कंपनी की कॉन्स्पिरेसी है, आप जेनरिक दवाई लीजिए। हमारे देश में जेनरिक दवाई इतनी सस्ती मिलती हैं। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट का डॉक्टर इनएफिशिएंट है, ध्यान से नहीं देख रहा, तो प्राइवेट में दिखाइए। अगर आपको साइकेट्रिस्ट पे भरोसा नहीं हो रहा तो साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। साइकोलॉजिस्ट पे भरोसा नहीं हो रहा तो साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। इतने सारे ऑप्शंस में कुछ तो चूज करिए, क्योंकि फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक होने की आप ही की है और कोई नहीं आने वाला। So this is my message to people who are struggling. Nobody is going to come and rescue you. You may romanticize, और आप कितना शराब पीना है पी लीजिए, जितना सिगरेट पीना है पी लीजिए। एक दिन आएगा जब बोलेंगे यार बहुत नहीं पीना, अब हो गया। उस दिन आप जो करेंगे वो अभी कर लीजिए, कहीं से भी शुरू कर लीजिए।